Hi students, in this video we are going to study about capacitors. You can see some capacitors in the picture in front of your screen. There are different types of capacitors available in the market, various shapes and sizes as you can see in the picture here. These capacitors are also called as condensers. Capacitors and condensers have various applications in the electronic industry. One application you can see in front of your screen. You can see a capacitor is used in a fan, ceiling fan. Hello students, in our video of class 12 chapter number 2 electrostatic potential and capacitance, let us go ahead with the new topic capacitors and capacitance. Chapter का नाम है electrostatic potential and capacitance. Capacitors and capacitance बहुत ही important topic है. What is the meaning of capacitor? बच्चों, capacitor is an electronic device which is used to store energy. कैपेसिटर का एग्जैक्ट डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं. अ कैपेसिटर is a system of two conductors separated by an insulator. This is the way you can actually define a capacitor. So you are having two conductors. This is one conductor, this is the another conductor. Suppose this conductor has got lot of positive charge and the other conductor has got negative charge. बीच में कोई ना कोई इंसुलेटर होगा इन दोनों के बीच में. वो एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है. वैक्यूम also acts as insulator. The charge on one conductor can be considered as Q1. The charge on the other conductor can be considered as Q2. These charges may be different, but we will consider only those conductors which have equal amount of charge. So that means if I consider the charge on the first conductor as Q, then the charge on the second conductor will be minus Q. The potential of the first conductor is V1, the potential of the second conductor is V2. So potential difference, I can say potential difference is V is equal to V1 minus V2. Let us remember students, याद करो what is the meaning of potential difference. तो मैंने potential का definition आपको क्या समझाया था? It is the work done. What is potential? It is work done in bringing a charge from infinity to a given point in the electric field. But when I am talking of potential difference, what does that mean? It is always a difference between 2 points. If I have a point A and I have a point B and I want to take a positive charge from point B to point A, then the work done in carrying the charge from B to A against the field, याद रखो, this work is done against the field, then that work done is called as potential difference. ये सब हम आगे पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर इसको समझने से पहले, ये सारे कंसेप्ट्स को समझने से पहले ये बेसिक्स भी आपके क्लियर हो जाने चाहिए. तो एक बार फिर से मैंने बता दिया. सो वंस अगेन, व्हाट इज अ capacitor? A capacitor is a system of two conductors. These are our two conductors separated by an insulator. The insulator may be vacuum, it may be air, or it may be any other dielectric. याद करो, what is a dielectric? It is nothing else but a non-conducting substance. The two conductors may have a charge Q1 and Q2, but we will consider them to be equal. They may be different. लेकिन हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में हमको सिर्फ ऐसे ही कैपेसिटर्स पढ़ने हैं जिनके चार्जेस इक्वल होते हैं. तो ये दोनों के चार्जेस है Q एंड माइनस Q. एक का पोटेंशियल V1, दूसरे का पोटेंशियल V2. तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया है V1 माइनस V2. अब बच्चों, क्या दो कंडक्टर्स का होना जरूरी है? नॉट नेसेसरी. हम एक कंडक्टर को भी कंसीडर कर सकते हैं. अगर हम सिर्फ एक कंडक्टर कंसीडर करते हैं तो अदर कंडक्टर इज एज्यूम्ड to be at infinity. Other conductor is assumed to be at
इंफिनिटी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सो यू हैव टू कंडक्टर्स इन अ कैपेसिटर, बट इफ देयर इज ओनली वन कंडक्टर देन यू अज्यूम दैट द अदर कंडक्टर इज एट इंफिनिटी। नाउ व्हेन आई से व्हाट इज द चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, कैपेसिटर का चार्ज क्या है, तो किसी भी एक कंडक्टर पे जो चार्ज है, मान लो, याद रखो हमने दोनों कंडक्टर्स के चार्जेस को इक्वल बताया है, यानी ये 5 कूलम्स है तो ये -5 कूलम्स हो गया, ये 9 कूलम्स है तो ये -9 कूलम्स हो गया। तो किसी भी एक कंडक्टर का जो चार्ज है, सपोज दोनों के ऊपर चार्जेस है 5 कूलम एंड -5 कूलम, तो मैं ये बोलता हूं कि कैपेसिटर का चार्ज है 5 कूलम, कैपेसिटर का चार्ज 5 कूलम, लेकिन नेट चार्ज 0, क्योंकि 5 और -5 कैंसिल हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे, तो नेट चार्ज क्या हो जाता है बच्चों, 0। सो चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज द चार्ज ऑन एनी वन ऑफ द कंडक्टर्स, बट द नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज 0। All right, so this is all about conductors. Let us proceed, capacitors. Let us proceed further in understanding some concepts about capacitors. Let me rub the board. चलो देखो बच्चों, अगर ये दो कंडक्टर्स है, एक कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे कंडक्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका चार्ज है +Q, इसका चार्ज है -Q, इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2, इनको हम चार्ज कैसे देते हैं, तो यूजुअली हम क्या करते हैं, वी कनेक्ट दिस टू द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहां से इधर पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ये नेगेटिव टर्मिनल से यहां पर नेगेटिव चार्ज होता है। एक्चुअली ये आता कैसे है, इट्स वेरी सिंपल। ये पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से ये वाला जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री चार्जेस जो होते हैं, देखो कंडक्टर है तो कंडक्टर में तो फ्री चार्जेस होते हैं, और ये फ्री चार्जेस कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल पर अट्रैक्ट होकर यहां आ जाते हैं। तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल में आ गए तो ये कंडक्टर में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो गई, तो ऑटोमेटिकली ये कंडक्टर कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करके ये कंडक्टर में आते हैं, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। इस तरह से हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं। अब यही सारी स्टोरी आप दूसरी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो। देखो कैसे, ये मान लो कि यहां से मुझे एक पॉजिटिव चार्ज को खींचकर ये दूसरे कंडक्टर पर लाना है। मान लो ये मेरे दो कंडक्टर्स हैं A एंड B, दीज आर आवर टू कंडक्टर्स। आई वॉन्ट टू टेक अ पॉजिटिव चार्ज एंड पुल इट into A. I will have to pull it, I will have to apply force, it's not going to be easy. Why? Because A is positively charged. तो अगर यहां से मैं एक पॉजिटिव चार्ज को खींच कर यहां ले आता हूं तो वो आसानी से नहीं आएगा। याद रखो, ये कंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, तो इन दोनों कंडक्टर्स के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है, कैन यू गेस? यस, ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड। दोनों कंडक्टर्स के बीच में क्या है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड existing between the two conductors. What do we have? We have an electric field existing between the two conductors. Electric field is from positive to negative. तो पॉजिटिव चार्ज जो है उसको मुझे पॉजिटिव की तरफ ले जाना है तो रिपल्शन होगा, तो आई विल हैव टू डू वर्क। सो आई एम डूइंग वर्क इन टेकिंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट B to point A, and that work done is the potential difference between points A and B. This potential difference V is proportional to the charge Q. Why? देखो, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं। मान लो शुरुआत में एक भी चार्ज नहीं था, दोनों न्यूट्रल है, ऐसे मानकर चलो शुरुआत में दोनों न्यूट्रल है। अब मैं यहां से एक पॉजिटिव चार्ज को निकालकर यहां ले गया तो ये एक पॉजिटिव हो गया, ऑटोमेटिकली यहां पर एक नेगेटिव हो जाएगा, वो तो आसानी से हो गया। अब अगर मुझे दूसरे पॉजिटिव को यहां ले जाना है तो क्या होगा, अब मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि एक पॉजिटिव यहां आने की वजह से अब रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया, तो मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। अब मैं दूसरे पॉजिटिव चार्ज को भी जब इधर ले आता हूं तो मुझे वर्क करना पड़ा था, वो वर्क कितना था, V था, तो यहां दो नेगेटिव हो गए। चलो अब यहां दो पॉजिटिव हो गए, दो नेगेटिव हो गए। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, वो भी बढ़ जाएगा। पहले इधर दो पॉजिटिव चार्ज थे, दो नेगेटिव चार्ज थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले एक एक थे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, अब चार्ज डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। अब मैं तीसरा चार्ज ले आता हूं।
अगर मुझे तीसरा चार्ज बी से ए पर लाना है तो मुझे बताओ वर्क अब ज्यादा करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा? जब एक भी चार्ज नहीं था तो बड़ी आसानी से हम लेकर आ गए। फिर जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव था तो थोड़ा फोर्स लगाना पड़ा। अब दो पॉजिटिव दो नेगेटिव है, तो जब मुझे तीसरा चार्ज बी से ए पर ले जाना है तो मुझे और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो चार्ज बढ़ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। सो V इज प्रोपोर्शनल टू Q। ऑलराइट, सो नाउ आई एम हैविंग 3 पॉजिटिव चार्जेस 3 नेगेटिव चार्जेस। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड? वो भी बढ़ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अब चौथा चार्ज, फोर्थ चार्ज आई वांट टू टेक फ्रॉम B to A। व्हाट अबाउट द वर्क डन? इट विल बी स्टिल ग्रेटर। सो नाउ आई कैन say that potential difference is proportional to the charge. In other language, I can also say that the charge is proportional to the potential difference. जैसे जैसे मैं ज्यादा वर्क करूंगा मैं ज्यादा चार्ज को ले जा सकता हूं. So charge is proportional to potential difference. And one more thing, the electric field between the two charges is between the two conductors is also proportional to the charge. More the charge, greater the electric field. Electric field is also proportional to potential difference. Greater the potential difference, greater will be the electric field. सारे interdependent है. लेकिन एक बात याद रखो बच्चों, मैं उसको मैथमेटिकली थोड़ा ऐसा समझा दूं कि अगर मैं ये बोलता हूं कि Q प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इज इक्वल टू, डायरेक्टली V लिख सकता हूं मैं? नहीं लिख सकता हूं, मुझे कोई ना कोई कांस्टेंट यहां पर लिखना पड़ेगा। वो कांस्टेंट मैं लिख देता हूं C। दिस कांस्टेंट C, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, is called capacitance. This constant C is called capacitance. From here I can understand that Q upon V is equal to C. What is C? Capacitance, and it is a constant. So remember this, students, that the ratio Q upon V is always constant. ये अभी मैंने एग्जाम्पल देकर आपको समझाया कि Q बढ़ गया तो V क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब एक चार्ज था पोटेंशियल डिफरेंस कम था, यहां पर दो पॉजिटिव तो ऑटोमेटिकली यहां पर दो नेगेटिव हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, Q 2 हो गया, V भी बढ़ गया। अब मैं यहां पर 3 चार्जेस ले आया, इधर पे 3 नेगेटिव चार्जेस लेकर आया तो V और बढ़ गया। 4 पॉजिटिव चार्जेस 4 नेगेटिव चार्जेस, V और बढ़ गया। तो Q बढ़ेगा तो V बढ़ेगा, V बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा। तो कैन आई से दैट C डिपेंड्स अपॉन Q? नो। C डिपेंड्स अपॉन V? नो, बिकॉज व्हेन Q इंक्रीजेस V ऑल्सो इंक्रीजेस। C इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, C चेंज नहीं होगा। किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फिक्स्ड होता है। हाँ, लेकिन आप ऐसा बोल सकते हो, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी बेसिकली किसी चीज को स्टोर करने की एबिलिटी होती है। आप एक वेसल ले लो, छोटा सा ग्लास ले लो, तो वो क्वार्टर लीटर यानी कि 250 मिलीलीटर्स पानी को होल्ड कर सकता है, उसकी कैपेसिटी 250 मिलीलीटर्स है। आप बड़ा बर्तन ले लो तो उसकी कैपेसिटी 1 लीटर हो सकती है, और थोड़ा बड़ा बर्तन ले लो तो उसकी कैपेसिटी 5 लीटर्स भी हो सकती है। तो किसी बर्तन की पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है, कुछ उसी तरह से हम यहां समझ सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, कैपेसिटर की होल्ड करने की कैपेसिटी क्या है? किसको होल्ड करता है? वो चार्ज को। कैपेसिटर किसको स्टोर करता है? चार्ज को। तो कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी क्या है? वो उसका कैपेसिटेंस हो गया। तो जो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है उसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, और अगर कैपेसिटेंस ज्यादा होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिकल रूल है कि अगर C बढ़ गया तो V
कम हो जाएगा, C बढ़ गया तो V कम हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, ये याद रखना आप। तो अलग अलग टाइप के कैपेसिटर्स बाजार में मिलते हैं। जिस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा वो ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, उसके दो कंडक्टर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, यही उसका मीनिंग होता है। सो रिमेंबर सर्टन थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड हियर। वी हैव अंडरस्टूड वन थिंग, that the electric field between the two conductors is proportional to the potential difference between the two conductors. Greater the potential difference, greater is the electric field. Or I can also say the electric field between the two conductors is proportional to the charge. If the charge on the conductors is doubled, this is more important. If the charge on the conductors is doubled, then the electric field also is doubled. So electric field is directly proportional to the charge, but the ratio charge upon potential difference always remains constant. This ratio is called as capacitance. Capacitance does not depend upon charge and potential difference. Remember this. Let me rub the board. We will proceed further. कैपेसिटेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको समझने चाहिए बच्चों। अभी मैंने इसके पहले जो समझाया था आपको कि कैपेसिटेंस जो है C वो Q या V दोनों पर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस, बट it definitely depends upon these two factors. It depends upon geometrical configuration and the nature of the insulator separating the two conductors. What do you mean by geometrical configuration? Geometrical configuration means shape of the capacitor, size of the capacitor या size of the conductor, size or shape of the conductor. And one more thing, it may also depend upon distance between the conductors. So capacitance depends upon geometrical configuration. What is the meaning of geometrical configuration? Geometrical configuration means shape of the conductor. किसका geometrical configuration? कंडक्टर का। कैपेसिटर के अंदर जो कंडक्टर होता है उसके ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है। तो ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कंडक्टर मींस शेप ऑफ द कंडक्टर, साइज ऑफ द कंडक्टर, या दो कंडक्टर्स के बीच में जो डिफरेंट डिस्टेंस होता है उस पर भी डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर का मीनिंग याद रखो आप। इंसुलेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाई इलेक्ट्रिक। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इंसुलेटर बिटवीन द टू कंडक्टर्स। वन मोर थिंग, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर? याद रखो, दो टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, बाजार में आपने कैपेसिटर लाया 5 माइक्रोफैरेड का या 10 पिकोफैरेड्स का, ऐसा कैपेसिटर्स बाजार में मिलते हैं, तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, तो वो हो गया फिक्स्ड कैपेसिटर। और उसका सिंबल ऐसा हम ड्रॉ करते हैं सर्किट्स में। जब हमको डायग्राम में इंडिकेट करना होता है तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये ब्रैकेट नहीं होगा ऑफ कोर्स, ऐसे ही जानबूझकर मैंने समझाने के लिए ब्रैकेट बनाया था, बट यू मे बी कंफ्यूज्ड। सो फिक्स कैपेसिटर का सिंबल ऐसा होता है। और दूसरा टाइप का जो कैपेसिटर होता है वो है वेरिएबल। और वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल जो होता है उसको हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। ये कैपेसिटर है और ऐसे एरो बना दिया तो ये हो गया वेरिएबल कैपेसिटर का सिंबल। फिर आपको कैपेसिटर का SI यूनिट याद रखना है। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या था, याद करो बच्चों। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q/V। व्हाट इज Q? चार्ज। उसका यूनिट क्या होगा? कूलम्ब। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, उसका यूनिट है वोल्ट, विच वी राइट एज V ओनली। सो यू कैन राइट दिस एज C(V⁻⁻1). ये एक यूनिट है, कूलम्ब पर वोल्ट, denoted as CV⁻⁻1. But what is volt? याद करो, वोल्ट यानी कि पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? वोल्ट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क का यूनिट होता है जूल, चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। तो जूल पर कूलम्ब हो गया, यानी कि आप
जे सी इनवर्स लिख सकते हो। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कूलम मल्टीप्लाइड बाय जे सी इनवर्स रेस टू -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब देखो -1 तो +1 हो जाएगा और ये सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कूलम स्क्वायर जूल इनवर्स ऐसे भी लिखा जा सकता है। और एक बात, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए इसका यूनिट न्यूटन मीटर भी हो सकता है। तो यहां पर न्यूटन मीटर अगर मैं लिख दूं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर। सो दिस इज द वे समटाइम्स units are written, sometimes units are written for capacitance, but the best unit for capacitance which is usually always written SI unit of capacitance is farad. This is very very important, ये आपको याद रखना है। SI unit of capacitance is farad, but sometimes you will come across this or this or this or this. You should know it at least. Now, farad is a very very large unit for practical purposes. So it is not usually straight away used. So you have smaller units. You will have 1 microfarad. इसका सिंबल F होता है। फैरेड नाम जो है ना, माइकल फैरेडे नाम के साइंटिस्ट के ऊपर से लिया गया है। So 1 microfarad can be written as 10 raised to -6 farads. Still smaller unit you can have 1 nanofarad. That is equal to 10 raised to -9 farads. Then you have 1 picofarad, that is equal to 10 raised to -12 farads. These are the smaller values. These values capacitors are available in the market. So this is some basic information about capacitors. I would like you to copy this in your textbooks or in your notebooks and we will proceed further. फटाफट इसको कॉपी कर दो, वीडियो को पॉज करके मैं बोल रख पढ़ता हूँ। स्टूडेंट्स, एक छोटा सा कंसेप्ट जो यहां पर आपको मालूम होना चाहिए वो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, ये अगर अपना 2 कंडक्टर्स का सिस्टम है, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दिस इज नेगेटिवली चार्ज्ड। सो दिस सिस्टम ऑफ 2 कंडक्टर्स इज कॉल्ड एज अ कैपेसिटर। अब देखो, जैसे जैसे मैं यहां पर चार्ज को बढ़ाता जाऊंगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज भी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों कंडक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो क्या होगा? देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है तब पहले तो मुझे एक बात आपको फिर से याद करवा दूं, ये दोनों क्या है? कंडक्टर्स है, यानी कि दोनों में क्या है? बहुत सारे फ्री चार्जेस हैं। इनके बीच में क्या है? तो हम ये मानकर चलते हैं कि इनके बीच में वैक्यूम है या तो फिर एयर है, एयर, हवा। एयर इज एन इंसुलेटर, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ बिकॉज एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां से फ्री चार्जेस जंप करके ये पॉजिटिव कंडक्टर पे नहीं आ सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, इधर पे जैसे जैसे चार्ज बढ़ता गया पॉजिटिव, क्या होगा? यहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाएगी। अब जब फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगी तो नेगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। और फिर क्या होगा? जैसे जैसे फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, एक ऐसे लिमिट आ जाएगी जब यहां से एक नेगेटिव चार्ज जंप करके यहां आ जाएगा। जब नेगेटिव चार्ज जंप करके एक नेगेटिव कंडक्टर से पॉजिटिव कंडक्टर पर आ जाता है हवा में, जबकि एयर तो बैड कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से एयर आयोनाइज हो गया, एयर गेट्स आयोनाइज्ड, and because of ionization of air it becomes easier for the charges to jump from the negative conductor to the positive conductor. This transfer of charges is called leakage of charge.
सो चार्ज अब लीक होने लगता है, लीकेज ऑफ चार्ज। इसी को हम डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी बोलते हैं। इन दिस केस बीच में जो एयर था उसको हम डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। इट इज एन इंसुलेटर, सो इट इज अ डाई इलेक्ट्रिक। सो दिस ब्रेकडाउन इज कॉल्ड एज डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एंड द मैक्सिमम electric field that the dielectric can hold is called dielectric strength। और यही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन भी होता है। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोनों का मीनिंग सेम है। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद ये लीकेज शुरू हो जाता है, लीकेज को ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो वो मैक्सिमम फील्ड, जैसे जैसे आप फील्ड बढ़ाते जाओगे, इनिशियली तो चार्ज का लीकेज नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे फील्ड बढ़ता जाएगा वो चार्ज जंप करके दूसरी साइड आ जाएगा, उसी को हम ब्रेकडाउन बोलते हैं। और वो जो ब्रेकडाउन है उसी को डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। तो प्रॉब्लम में कभी कभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आता है, कभी कभी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आता है। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद चार्ज का लीकेज शुरू हो जाएगा। वैसे एयर के लिए उसकी लिमिट है 3 × 10⁻⁶ कूलम्ब पर मीटर, या वोल्ट मीटर भी आप बोल सकते हो। दोनों यूनिट्स वैलिड है। आइदर यू राइट द यूनिट एज कूलम्ब पर मीटर और यू राइट द यूनिट एज वोल्ट मीटर। 3 × 10⁻⁶, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट मीटर अगर मैं लिखता हूं तो इट इज अ वेरी ह्यूज वैल्यू। ये होता है 3 × 10⁻⁶, यानी 3 मिलियन वोल्ट्स। अगर ये दो कंडक्टर्स के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस है, तो अगर मैं 3 मिलियन वोल्ट्स का करंट इसमें प्रोड्यूस करता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अगर प्रोड्यूस करता हूं, तो एक कंडक्टर से चार्ज जंप करके दूसरे कंडक्टर पर आ सकता है। इसी वैल्यू को अगर मैं थोड़ा डिस्टेंस को थोड़ा कम कर दूं, मान लो दोनों कंडक्टर्स 1 सेंटीमीटर पर है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻⁴ वोल्ट पर सेंटीमीटर। यानी सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 3 × 10⁴। वो भी कम नहीं है, 30,000 वोल्ट्स। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाकर एक एग्जांपल आपको मैं समझा दूं कि बारिश के दिनों में जब बिजली दिखती है हमको स्काई में, तो एक्चुअली होता क्या है, 2 क्लाउड्स होते हैं। एक क्लाउड पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज होता है, और इन दोनों क्लाउड्स के बीच में एयर होती है। और एयर तो इंसुलेटर है, डाइलेक्ट्रिक है। अब एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज है वो उसका पोटेंशियल हम हायर पोटेंशियल बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज का पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल होता है। तो पोटेंशियल का वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का जो वैल्यू होता है वो बहुत हाई हो जाता है। ये जो क्लाउड्स होते हैं उसमें पोटेंशियल डिफरेंस एज मच एज 6 मिलियन वोल्ट्स हो जाता है। तो चार्ज बड़ी आसानी से लीक होकर एक क्लाउड से दूसरी क्लाउड पर जाता है, और वो 1-2 चार्ज नहीं, बहुत सारे चार्जेस लीक होते हैं। और जब ये चार्जेस लीक होते हैं तो स्पार्क्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिजली हुई। तो जो बिजली चमकती है ना, वो इसी तरह से चमकती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस इन दिस video, students. In the next video we will proceed with the parallel plate capacitor. See you in the next video.